Welcome all. Welcome all. Welcome to virtual classroom in Blender learning mode. This is brought to you by DGT, hosted by Nimi Chennai, and this session is co-hosted by NSTI Calicut. My name is Prasad, instructor at NSTI Calicut. We'll be discussing further on circuit breakers today. Circuit breakers. We'll be seeing what are the objectives of this session. हम डिस्कस करेंगे एयर ब्लास्ट सर्क्यूट ब्रेकर के ऑपरेशन के बारे में, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्क्यूट ब्रेकर के बारे में और वैक्यूम सर्क्यूट ब्रेकर के बारे में. Okay, so it is the last one. It is vacuum circuit breaker. So 3 circuit breakers will be telling today. It is air blast circuit breaker, SF6, and the last one is vacuum circuit breaker. Let us go. We'll be just have a revision. The circuit breakers should be capable of working at normal load, overload, and short circuit. ये सर्क्यूट ब्रेकर सभी कंडीशन पे काम करना जरूरी है. क्या क्या कंडीशन पे? नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल करंट कैरिंग कंडीशन में, ओवरलोड में और शॉर्ट सर्क्यूट में. तो सभी करंट इसमें जा सकता है. और क्या प्रॉब्लम होगा? उसमें आर्क होगा, उसमें 2 कॉन्टैक्ट होगा, 1 फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, 1 मूविंग कॉन्टैक्ट. व्हेन द मूविंग कॉन्टैक्ट इज मूविंग, there will be arc. You are seeing a arc now. This is arc. जब मूविंग कॉन्टैक्ट मूव कर रहा है सर्क्यूट ब्रेकर में, उसमें आर्क होगा. तो सर्क्यूट ब्रेकर में ये इंपॉर्टेंट है, आर्क जितना जल्दी रिमूव कर सकता है उतना अच्छा होगा. So the requirement of circuit breaker is to remove the arc between the contact at the earliest. How we can remove? That is the answer. We can provide better insulating material between the contacts. एक कॉन्टैक्ट के बीच में अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल डाले तो अच्छा समय से वो आर्क रिमूव कर सकता है. So what are the insulating material? They are air, vacuum, sulfur hexafluoride, and oil. Such insulating materials are there. So based on the names of insulating material, we'll be telling the names of circuit breakers. तो ये आर्क कैसे रिमूव करता है वो ही हमारा मेन इंपॉर्टेंट सर्क्यूट ब्रेकर में. रिमूव करने के लिए ये दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में हम क्या करेंगे? इंसुलेटिंग मटेरियल डालेंगे. क्या क्या इंसुलेटिंग मटेरियल अच्छा है हमारे पास? ऑयल है, एयर है, SF6 जानकारी नाम एक गैस है, और हमारे पास वैक्यूम भी है. सो the dielectric strength, insulating strength between contact will be increased. उसके अनुसार हमारा आर्क जितना जल्दी रिमूव कर सकता है तो उतना अच्छा होगा. So the arcing is the main problem. अभी आप देख रहा है आर्क का एक पिक्चर. Okay. अभी जो भी सर्क्यूट ब्रेकर हो, there are main 5 parts. We'll be discussing that directly. Okay. Whatever may be the circuit breaker, whichever company, there are generally 5 sections we can tell about. 5 sections. So when you are going to substation, when you are going to factory, when you are going working somewhere, you may be able to see circuit breaker. उसमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन में क्या होगा अभी बता देंगे. वो पहला है फ्रेम. MCB आप देखा है, you have already seen MCBs and it is having small plastic casing. MCB बताता, miniature circuit breaker. It is having some plastic casing, and in some cases it will be molded case circuit breaker. It will be known as MCCB.
एज द सर्क्यूट ब्रेकर इज बिकमिंग बिगर, जितना बिगर जा रहा है उसमें मेटल का फ्रेम भी हो सकता है। तो एक फ्रेम होगा वो मेटल का भी हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट इज फ्रेम, यू टोल्ड अबाउट फ्रेम। अभी ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के बारे में, नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। So in the operating mechanism, we know we'll just see about our MCB. MCB आपका क्या कर सकता है, नीचे से ऊपर तक दबा रहा है, इट इज हैविंग सम फोर्स। क्यों इतना फोर्स चाहिए उसको, क्योंकि हम कोई स्प्रिंग उस पर डालता है, ये स्प्रिंग को आप पूरा तरीके आपको डालना है। सो इट इज टेकिंग सम फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट स्प्रिंग स्ट्रेंथ, उसी स्प्रिंग के वजह से वो जब कोई फॉल्ट होगा सडनली ट्रिप होता है। सो देयर शुड बी सम ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। सो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या करता है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट को जितना तेज से दूर बनाता है, the fast it will be making the moving contact separated from the fixed contact. That is the requirement of operating mechanism. We'll be seeing the picture later. And contacts, there will be two contacts, fixed and moving. Next is arc extinguisher. Okay, arc extinguisher इतना ही है, उसमें किसका क्या टाइप का मटेरियल यूज कर दिया है, एयर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, SF6 हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है। सो what is the material inside that to remove the arc? And next is tripping unit. ट्रिपिंग यूनिट तो क्या है, ट्रिपिंग सेंस करेगा, वोल्टेज आपको ज्यादा है वोल्टेज सेंसिंग करेगा, नहीं तो करंट सेंस करेगा। सो जो भी क्वांटिटी को सेंस करता है वो ट्रिप यूनिट बताता है। सो यू विल बी सीइंग ऑल दीज 5 पार्ट्स इन एनी सर्क्यूट ब्रेकर। अब ये 5 चीजें सभी सर्क्यूट ब्रेकर जो भी कंपनी का भी है उसमें आप देख पाएंगे। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी ऑपरेटिंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो ये सर्क्यूट ब्रेकर आप देखा है नॉर्मल MCB एंड दैट विल बी वर्किंग विथ ओवर टॉगल, मींस इट इज एक्टिंग एज ए स्विच। आपको हाथ से चेंज कर सकता है, आपको हाथ से चेंज कर सकता है उसको, वो बताता है टॉगल। इस स्विचिंग के नाम है टॉगल करना। So by toggling, you will be able to operate that. So that is a simple operating mechanism in normal MCBs or MCCBs. So this is one of the mechanism. अभी हम देखेंगे 2-step stored energy. राइट साइड पे आप देखता है एक सर्क्यूट ब्रेकर, उसका नाम है एयर सर्क्यूट ब्रेकर। एयर सर्क्यूट ब्रेकर का एक पिक्चर आप देख रहा है, उसमें 2-step stored energy है। ओके, MCB के अंदर एक स्प्रिंग है, आपको जानता है। अभी स्प्रिंग आपको हाथ से कर सकता है इन MCB हाथ से आपको कर सकता है, क्योंकि स्प्रिंग इतना टेंशन का नहीं है, हाथ से करना मुश्किल नहीं होगा। बट एज द कैपेसिटी ऑफ द सर्क्यूट ब्रेकर इज इंक्रीजिंग, इट विल बी डिफिकल्ट टू ऑपरेट बाय डायरेक्टली बाय हैंडल। सो वी आर हैविंग सम स्प्रिंग ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। ओके, सो I'll just try to show you a video. If it is okay, you will be able to see the operation of a manually operated or circuit breaker. I'm just trying to open. I'm not sure whether a video will be able to be played. You please keep your mobile in landscape mode. आप अभी देखता है एक एयर सर्क्यूट ब्रेकर, एयर सर्क्यूट ब्रेकर देखता है, और उसमें एक रेड कलर बटन है वो ट्रिप करने का और ऑफ करने के लिए, और पुश टू क्लोज। तो वी आर हैविंग 2 कंडीशंस। क्लोज मींस स्विचिंग ऑन, ऑफ करने के लिए ये ब्लैक बटन रहेगा, ओपन करने के लिए रेड बटन रहेगा। तो सर्क्यूट ब्रेकर चालू करने के लिए ब्लैक दबाना है, और रेड दबाए तो क्या होगा, वो ओपन होगा। और स्टेटस आप देख सकता है बीच में वो एक ग्रीन कलर बटन है, अभी उसका स्टेटस है ओपन। और उसके राइट साइड पे कुछ काम करना है अभी, जो मैनुअली आपको चार्ज करना है MCB पे। MCB में आसान से कर सकता है स्प्रिंग, डायरेक्टली पुश करे तो स्प्रिंग एक्चुएट होगा, लेकिन एक एयर सर्क्यूट पे आप देख सकता है अभी
मैनुअली एक स्प्रिंग को लोड करना है. You'll be able to see one person is moving the handle, it will be charging the spring. MCB तो इजी था अभी, लेकिन इधर मैनुअली चार्ज करना है. इसको बताता है स्प्रिंग चार्जिंग. अभी स्टेटस चेंज हो गया. अभी जूम करके देखेंगे, स्प्रिंग चार्ज हो गया. आप देख सकता है अभी चार्ज्ड. ओके, अभी क्या बताता है? अभी रेडी है, तैयार है ओपन करने के लिए. अभी स्विच क्लोज हो गया. ओके, सो ये है एक मैकेनिज्म ऑफ breaker. Okay, so we are going back to the original PPT. Okay, so there are two types. Okay, I believe video is having some problem. Okay, so let me try it with the GIF. I'll try with the GIF. Let me try just few seconds. If it is not possible, we'll close that part. It is important, I think. Let me try. So this is a handle. This handle has to be moved. Okay, if this handle is be moving only, the charge of the spring will work. अब देख सकता होगा एक आदमी मूव करता है, ये मूव करने के समय स्प्रिंग चार्ज होगा. Okay. Now this is a video. If you are able to see, one person has to move the handle. This handle has to be moved. I hope the video or picture is being clear. Now it is being charged and it is getting charged, if you are able to see. And a button can be pushed here to close the switch. Now it is working. So the handle has to be switched. Work like this. So we're coming back to original PPT. We are telling about. Okay, fine. If nobody is seeing the item also, please don't worry. Now I'll discuss again. So operating mechanism, I'll come back to operating mechanism. You please hear. अभी हमारे पास MCB है और टॉगल स्विच बता देंगे, टॉगल टाइप बताएंगे, हाथ से हम कर सकता है. लेकिन इसमें एक हैंडल होगा, इसी साइड पे एक हैंडल होगा. ये हैंडल को दबाना होगा आपका एयर सर्क्यूट ब्रेकर में. उसमें क्या होगा? उसमें एक स्प्रिंग होगा. वो स्प्रिंग चालू करने के लिए ये हाथ से मूव करना होगा, हैंडल मूव करना होगा, वही इसमें इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस इज एनर्जी स्टोरिंग बाय मैनुअल मेथड. तो सर्क्यूट ब्रेकर में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल एमसीबी में हमको हाथ से कर सकता है, कोई प्रॉब्लम, स्प्रिंग हाथ से ऑपरेट कर सकता है. लेकिन उसका कैपेसिटी इंक्रीज करने के समय हमको हाथ से ये ऑपरेट नहीं कर सकता. तो मैनुअली कोई हैंडल रहेगा. आप सबस्टेशन या पावर स्टेशन कोई फैक्ट्री चाह रहे, तो ये चालू करने के लिए आप क्या करना होगा? कोई मैनुअल ऑपरेशन से हाथ से राइट साइड पे जो देख लिया, उसी हेल्प से आपको चार्ज करना पड़ता है. ओके, आफ्टर चार्जिंग दैट यू कैन स्विच ऑन द रिले कॉन्टैक्ट्स. सो दिस इज
stored energy, spring storing energy. So there are springs. Okay, spring is there in MCB. MCB में spring है, लेकिन हम हाथ से करता है, लेकिन spring होगा वो मैनुअल बाय लीवर मैकेनिज्म से कर सकता है, और भी बिगर ब्रेकर है तो उसमें कैसे करेंगे, उसमें हम करेंगे कोई मोटर के वजह से. सो मोटर भी हो सकता है, ये स्प्रिंग लोड करने के लिए मोटर भी हो सकता है सर्किट ब्रेकर में. सो 3 टाइप्स आर द. एमसीबी में क्या है, हाथ से, और एयर सर्किट पे राइट साइड पे अभी दिखता है उसमें मैनुअली बाय लीवर मैकेनिज्म. And in bigger circuit breakers, it will be operated only by some motors. Some motors will be there. So you will be able to see springs like this. I hope you are seeing a picture right now. This is a open condition of circuit breaker. You are seeing 2 springs. Red and green springs are there. And when operating the green spring, it will be opening. The contact will be opening. And when red spring is open tightening, it will be closing the switch. Okay, so the circuit breaker contact, ये अभी देख रहा है contact, वो open करने के लिए और close करने के लिए springs चाहिए. यही mechanism. This is known as mechanism of circuit breaker. Okay, तो एक circuit breaker simple electrical device ही नहीं, उसमें एक mechanical डिवाइस भी है, मैकेनिकल तरीका भी है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का. ओके, सो नॉर्मल एमसीबी आप हाथ से कर सकता है. बड़ा वाला सर्किट ब्रेकर्स में उसके अंदर मोटर होगा, ये स्प्रिंग चलाने के लिए. आप स्प्रिंग ही देख रहा है, ये स्प्रिंग रेड आइटम ओपन हो गया तो स्विच क्लोज होगा, ग्रीन अनकोइल हो गया तो ओपन होगा स्विच. ओके, सो बिकॉज ऑफ दीज 2 springs, the opening and closing of switches will be faster. क्यों मैं स्प्रिंग डाल रहा है, क्यों स्प्रिंग डाल रहा है, ये कॉन्टैक्ट तेज से क्लोज करना है और ओपन करना है, तो स्प्रिंग डाल रहा है. हम जब एमसीबी ऑपरेट करता है, अब जानता है जब आप स्विच ऑफ करता है, सडनली इट इज गोइंग टू द बॉटम बिकॉज ए स्प्रिंग इज देयर. सो इट इज द रीजन इट विल बी separating the 2 contacts. The 2 contacts will be separating fast. So there should be 2 springs in the bigger circuit breakers and it will be operated by motors. उसके लिए separate DC motor भी हो सकता है. Okay, so that was the operating mechanism. We told about some trip unit also. Trip unit. Okay, so the trip unit, there are 2 types of trip unit. इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रिप यूनिट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रिप यूनिट, और राइट साइड पे आप देख सकता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप यूनिट. सो ट्रिपिंग करना इतना ही है, जब फॉल्ट करंट उसमें है वो डिटेक्ट करना. वो पुराना तरीके में हमारा कोइल से भी कर सकता है, उसको बताता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल. एक्चुअली इट इज ओल्ड मेथड एंड नाउअडेज यू विल बी गेटिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप टाइमिंग्स. ओके, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड. And when it is electronically controlled, उसमें बहुत सारा और भी एडवांटेज है. वो आप जिधर है हमारे सर्किट ब्रेकर, उधर से दूर तक कम्युनिकेशन भी कंट्रोल कर सकता है, कम्युनिकेशन भी आसान से कर सकता है. अभी क्या है उसका स्टेटस, वो भी कम्युनिकेट कर सकता है, तो बहुत आसान है उसमें. और द इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस. हमको बता सकता है कोई पैरामीटर्स, वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस सभी मेजर करके हमको बता सकता है क्या कब प्रॉब्लम हो सकता है. सभी पार्ट्स अच्छा काम करता है अभी, वो बता सकता है. ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप यूनिट्स में. सो जनरली मैकेनिकल ट्रिप यूनिट्स आर द प्योरली इलेक्ट्रिकल एंड द कॉस्ट विल बी कंपैरेटिवली लेस. ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रिप यूनिट्स. ट्रिप यूनिट्स क्या करता है, वो प्रॉब्लम सेंस करेगा. इलेक्ट्रोमैकेनिकल तो क्या है, वो इलेक्ट्रिकली सेंस करेगा, और इलेक्ट्रॉनिक साइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सेंसिंग होगा, और इट विल बी वेरी हाईली एक्यूरेट एंड इट इज हैविंग हाई कॉस्ट आल्सो. ओके, सो दिस इज अबाउट ट्रिप यूनिट्स. सो ETU, you will be seeing the name ETU, electronic trip unit. Okay, now in the MCBs and all, there will be 2 contacts, one fixed contact and one moving contact. Okay, one fixed contact and one moving contact, and there will be 2 methods of sensing. MCB में है तो over current bimetallic strip से सेंस करेगा,
और कोई शॉर्ट सर्क्यूट है तो वो मैग्नेटिक कोइल से सेंस करेगा, मैग्नेटिक कोइल से सेंस करेगा। ओके, व्हाट इज ओवर करंट? सोचो 10 एम्पियर नॉर्मल करंट है तो 15 एम्पियर हम बता सकता है ओवर करंट। तो 15 एम्पियर तो उसका बाईमेटालिक स्ट्रिप से सेंस करेगा, और 100 एम्पियर 10 एम्पियर नॉर्मल करंट है और 100 एम्पियर शॉर्ट सर्क्यूट भी हो सकता है और 1000 एम्पियर शॉर्ट सर्क्यूट भी वो सेंस करेगा मैग्नेटिक मेथड में। सो देयर विल बी टू कॉन्टैक्ट्स in circuit breakers. Okay, so this is about circuit breakers. Now you will be seeing the different types of circuit breakers and its operation. Now we are going to discuss about air circuit breaker and air blast circuit breaker, ACB and ABCB. Okay, so उसका नाम से ही हमको पता चलता है उसका इंसुलेटिंग मीडियम कौन सा है। इंसुलेटिंग मीडियम एयर ही होगा, इंसुलेटिंग मीडियम एयर ही होगा। सो जनरली एसीबी एयर सर्क्यूट ब्रेकर कम कैपेसिटी का होगा, जनरली लो वोल्टेज कैपेसिटी में यूज करता है, लो वोल्टेज में एयर सर्क्यूट ब्रेकर्स यूज करता है। जब वो ज्यादा कैपेसिटी का ज्यादा वोल्टेज में यूज करता है, आप राइट साइड में देखता है वो है एक पिक्चर एबीसीबी का, एयर ब्लास्ट सर्क्यूट ब्रेकर। इट इज generally available in bigger voltages also. When it is lower voltage, it is ACB, and if it is high voltage equipments, it will be ABCB. So air blast circuit breaker. तो एयर है दोनों में, बट डिफरेंस क्या है? एयर ब्लास्ट होगा। अभी सोचो आपका कॉन्टैक्ट ओपन कर रहा है, कोई कुछ एयर कंप्रेसर्स के मदद से उसके कॉन्टैक्ट के बीच में हम कंप्रेस करके प्रेशराइज देंगे तो उससे आर्क कम होगा। So such item it is not available in ACB. ACB simple breaker है, और blast करे तो ABCB बनेगा। We'll be going to the operation directly. We'll be seeing the picture. This is the picture of ABCB, air blast circuit breaker. Okay. Now we are seeing what? We are seeing a fixed contact. Let us say this is fixed contact and this is moving contact. कोई प्रॉब्लम हो गया तो मूविंग कॉन्टैक्ट राइट साइड पे आएगा, राइट साइड पे आएगा, सही है। तो ये नीचे क्या है? इधर एयर रिजर्वोयर है, एयर रिजर्वोयर। तो देयर में बी सम कंप्रेसर, ये कंप्रेसर से एयर कंप्रेस करके रखा है। एयर रिजर्व में क्या होगा? एयर कंप्रेस करके रखा होगा, and there will be some air valve. Okay, some fault occurs, the moving contact will move away. With this movement क्या होगा? हमारा एयर वाल्व ओपन करेगा, एयर वाल्व ओपन करेगा। तो एयर वाल्व ओपन करे तो क्या होगा? ये एयर इसी रास्ते पे बाहर आता है। तो इसी रास्ते पे क्या होगा? एक्चुअली आर्किंग होने का जगह है, ये आर्किंग होने के जगह पे हमारा कंप्रेस्ड एयर आता है। कंप्रेस्ड एयर ये रास्ते पे जब आएगा, पूरा आर्क उधर से निकलने का चांस ज्यादा बढ़ेगा। सो वी आर पुशिंग सम कंप्रेस्ड एयर, and because of that the arc will be removed away. So this is the general principle of operation of air blast circuit breaker. सिंपल एयर नहीं है, ब्लास्ट करता है एयर, कुछ रिजर्वोयर से कंप्रेस करके रखा है, वो वाल्व ओपन करके ये मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में डालेंगे। ओके, सो when it is moving, when the air compressor will be opening, it will be opening when the moving contact निकलता है। जब मूविंग कॉन्टैक्ट निकलता है, अब शुरू करता है एयर वाल्व का ऑपरेशन। ओके, सो उसका काम ऐसा है, जब कोई फॉल्ट आ गया, उसका सीक्वेंस ऐसा है, जब कोई फॉल्ट आ गया, मूविंग कॉन्टैक्ट निकलता है, एयर कंप्रेसर से एयर वाल्व ओपन करता है, उससे एयर निकलता है और हमारा कॉन्टैक्ट के बीच में आता है। तो क्या होगा? हमारा एयर, it is removing the arc problem. Okay, so this is general working, and you will be able to see the steps like this in the previous slide. So this is happening in air circuit breaker. So
In air circuit breaker, high pressure air is the medium for arc removal. High pressure air ही उसका arc medium है, arc removal का medium है. Okay, and what is the property of arc air? It is cooling the arc. Okay, क्या करता है ये air? क्या करता है? It is conducting two properties. It is cooling the air. Okay, और arc को remove करता है, arc से निकलता है, ये दोनों वो करता है. तो it is simultaneously cooling the arc and removing the or sweeping away the arcing products. Okay, तो एयर वाल्व ऑटो ओपन ही हो गया. एयर वाल्व ओपन होता है जब ये फॉल्ट डिटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन रिले फॉल्ट डिटेक्ट करता है, उसी समय हमारा वाल्व ऑटोमेटिकली ओपन करता है. ओके, सो arc is removed by the blast of air. Now the advantage is that the air will be having higher dielectric. Compressed air will be having higher dielectric. ज्यादा इंसुलेशन रहेगा किसमें? कंप्रेस्ड और प्रेशर एयर में ज्यादा डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा नॉर्मल एयर से, उसके वजह से वो काम करता है. आई होप यू आर क्लियर अबाउट वर्किंग ऑफ दिस आइटम. दिस वाज द आइटम एंड देयर आर सम क्लासिफिकेशंस. अभी चालू करता है हम एयर कॉन्टैक्ट के बीच में, कैसे वो फ्लो करता है उसके अनुसार उसको बताएगा. एक्सियल, इधर एक्सियल है, ये वाला एक्सियल. ये क्रॉस ब्लास्ट बताएगा, क्रॉस ब्लास्ट, ये दोनों क्रॉस ब्लास्ट है. एयर कैसे पास करता है, हाउ द एयर इज मूविंग इन बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स. इफ इट इज एक्सियल इन द लेफ्ट वन फर्स्ट इट इज द एक्सियल एंड मिड वन इट इज द क्रॉस ब्लास्ट. आप देख सकता है क्रॉस ब्लास्ट, सॉरी क्रॉस ब्लास्ट. एयर इसी रास्ता पे आता है और इट विल बी मूविंग थ्रू द आर्क स्प्लिटर्स. द आर्क इट इज गेटिंग स्प्लिटेड. आर्क स्प्लिट हो गया तो क्या होगा, आर्क रिमूव होने का चांस ज्यादा बढ़ेगा. ओके, सो दिस इज नोन एज एक्सियल एंड क्रॉस ब्लास्ट. एंड देन द नेक्स्ट थिंग इट इज द रेडियल ब्लास्ट. रेडियल, यू कैन सी द इनकमिंग एंड आउटगोइंग डायरेक्शंस आर डिफरेंट. इसको बताता है रेडियल ब्लास्ट. सो देयर आर थ्री टाइप्स: axial blast, air blast circuit breaker, and cross blast and radial blast. Okay, it is just the direction of the air in between contacts. Okay, so this is happening. If you are unclear about this axial and radial, I'll be just showing a next slide, so you'll be more clear on that. You can see what is axial and radial. The direction of air in the left side, it is an axial flow fan. एक्सियल फ्लो फैन इतना ही है, उसका ये शाफ्ट है ना, शाफ्ट का एक्सिस का पैरेलल उसका एयर आ गया तो एक्सिस, ये शाफ्ट है मोटर का, उसका एक्सिस में जाए तो उसको एक्सियल बताता है. लेफ्ट साइड पे आप देख सकता है एक्सियल एंड राइट साइड पे रेडियल. इनकमिंग ऑफ एयर एंड आउटगोइंग ऑफ एयर एक्सिस पे नहीं है, वो रेडियली एयर होता है. ओके, सो दिस इज नोन एज एक्सियल एंड रेडियल एयर फ्लो. If it is through the air contacts or the contacts in the ABCB, it will be known as axial blast or cross blast or radial blast circuit breaker. Okay, so the air blast circuit breaker is using the air as medium for removal. अभी ABCB circuit breaker में compressed air और pressurized air है, arc removal करने के लिए यूज करता है. ज्यादा भारी करंट है तो आर्क रहेगा. आर्क को रिमूव करने के लिए कॉन्टैक्ट के बीच में हम क्या करता है, हम ज्यादा प्रेशर में डालता है एयर, वो कूल करता है और पूरा आर्क को निकालता है. और ये एयर कैसा फ्लो करता है उसके अनुसार क्या होगा, उसका दो नाम है बताएगा डायरेक्टली, एक्सियल एंड रेडियल. एक्सियल तो ऐसा है, वो कॉन्टैक्ट के एक्सिस के पैरेलल में एयर आ गया तो एक्सियल होगा, और इनकमिंग एयर एक डायरेक्शन में और आउटगोइंग डायरेक्शन दूसरा है तो उसको रेडियल बताएगा, जैसे आप अभी पिक्चर देखता है. और क्रॉस ब्लास्ट ये है कॉन्टैक्ट के क्रॉस जब एयर जाए तो उसको बताता है क्रॉस ब्लास्ट. सो दिस आर द थ्री आइटम्स. नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ABCB. ओके, विल बी जस्ट डिस्कस अबाउट ABCB. पहला ABCB का एडवांटेज क्या है, उसमें आर्क और एयर फायर होने का चांस बहुत कम है. ये कंपेयर करें तो ऑयल से कंपेयर करता है, ऑयल सर्क्यूट ब्रेकर.
ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल है ट्रांसफॉर्मर ऑयल, उसमें ज्यादा फायर का प्रॉब्लम था। अभी एबीसीबी में फायर का प्रॉब्लम बहुत कम है। ओके, वो है फर्स्ट एडवांटेज। और सेकंड एडवांटेज ये है, कोई आर्किंग प्रोडक्ट, आप इतना रीडिंग नहीं करना है, आप बताएंगे, आप सुनिए। आर्किंग प्रोडक्ट जो भी है वो एयर के ब्लास्ट से वो रिमूव हो जाएगा। ओके, तो कोई आर्किंग प्रोडक्ट्स लेकर कार्बन डिपॉजिट उसमें नहीं रहेगा, वही एडवांटेज है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर ब्लास्ट अभी वो तेज से बढ़ेगा। अभी सोचो कोई आर्क आ गया, उस एरिया का इंसुलेशन बहुत कम होगा, लेकिन बहुत आसान से और बहुत तेज में उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फिर भी वापस आता है। ओके, effectively the size of the machine will be reduced. Okay, and next is arcing time. जितना आर्क तेज से जाता है, हम बता सकता है आर्किंग टाइम बहुत कम है, एबीसीबी में कम है। ऑयल कंपेयर करें तो आर्किंग टाइम इसमें बहुत कम है। और आर्क कम है तो हम बता सकता है आर्क का एनर्जी, आर्किंग टाइम कम रह गया तो आर्किंग एनर्जी कम होता है। एडवांटेज क्या है, उसका हीटिंग बहुत कम होगा, द हीटिंग विल बी वेरी लेस। ओके, सो इसमें क्या और भी एडवांटेज है, तो जो भी शॉर्ट सर्क्यूट करंट है वो 10,000 एम्पियर हो सकता है, 20,000 एम्पियर हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा वर्किंग करने के लिए, क्योंकि एक कंप्रेस्ड एयर जाता है। आपका करंट जितना भी है, तो 10,000 एम्पियर हो सकता है, 20,000 एम्पियर हो सकता है, वो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, अच्छा तरह वो निकलेगा, क्योंकि ये कंप्रेस्ड एयर करंट से इंडिपेंडेंट है, आसान से निकलेगा। ओके, तो आर्क एनर्जी और हमारा एयर प्रेशर में डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। तो कम करंट और बिगर करंट, कम करंट और हेवी करंट है तो दोनों में अच्छा काम करेगा एबीसीबी। ओके, अभी हम बताएंगे कोई कुछ प्रॉब्लम भी। आर्क रिमूव करने के लिए एयर इतना अच्छा नहीं, मीडियम में नहीं, ऑयल से कुछ आगे है, ऑयल से कुछ आगे है, लेकिन वो बहुत अच्छा चीज नहीं है। एयर तो कुछ कम प्रॉपर्टी है उसके लिए, एंड मेंटेनेंस उसमें ज्यादा पड़ेगा, मेंटेनेंस ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि उसमें कंप्रेसर है, एक कंप्रेसर प्रेशर प्रॉपर है, तो चेक करना पड़ेगा टेक्नीशियन को, नहीं तो वो प्रॉपर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। बताए तो उसका मेंटेनेंस ज्यादा खर्चा का है। सो एबीसीबी का प्रॉब्लम ये है। अभी अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ आइटम, दैट इज नोन एज सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्क्यूट ब्रेकर्स, नॉट सीएम्स, इट इज सीबीस, sulfur hexafluoride CBs. You are seeing a picture of sulfur hexafluoride in the outdoor yard, in the outdoor switching yard in the substation. A bigger circuit breaker is shown for you. This is the sort of circuit breaker, namely sulfur hexafluoride. Okay, we'll be seeing what it is, how it is working. It is a gas. Basically sulfur hexafluoride, it is a gas. हम पहले यूज किया ऑयल, उसके बाद डिस्कस किया एयर, अभी एक गैस आता है। नाउ ए गैस इज बीइंग यूज्ड एज द इंसुलेटिंग मीडियम। इट इज अ गैस बेसिकली। व्हाट इज एडवांटेज, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या है, वो आर्क होगा तो क्या होगा, आर्क में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है और आर्क होता है, ग्लो होता है ना। तो दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी अब्सॉर्ब बाय दिस गैस, it is known as electronegative. So electron is being absorbed, it will be reducing the arcing. तो आर्किंग कम करेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन को वो निकल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके। इट इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अब्सॉर्ब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है वो ही करता है हमारा आर्किंग। तो आर्किंग रिमूव करना है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। तो हमारा सल्फर हेक्साफ्लोराइड का प्रॉपर्टी ही ये है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है, तो ज्यादा अच्छा से वो निकलेगा। ओके, एंड वो भी नहीं, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में द सल्फर हेक्साफ्लोराइड विल बी हैविंग लेसर प्रेशर, नॉर्मली कम प्रेशर में यूज करता है। ओके, सो सल्फर हेक्साफ्लोराइड व्हेन प्रॉब्लम होता है तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, उसका प्रेशर हम इंक्रीज करेगा। सो the electrons will be made to immobile negative ions. इलेक्ट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करता है और उसको इमोबाइल करता है, मूव नहीं करेगा,
मोबाइल तो आयन तो मूव नहीं करेगा। सो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का मेन प्रॉपर्टी ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट करता है। अभी ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड के बात बताने के समय एक इंपॉर्टेंट चीज भी बताएंगे हम। पहले ऊपर के पिक्चर में आप देख सकता है एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन, एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन। सो जो एक पार्टिकल कैपेसिटी का है, एयर इंसुलेटेड मींस एयर इज देयर इन द आउटडोर एरिया, आउटडोर एरिया में ज्यादा एयर ही है। ओके, सो एयर इंसुलेटेड बता सकता है। ये सेम कैपेसिटी हम एयर से चेंज किया, इंसुलेशन को गैस बना दिया, गैस बना दिया, गैस मींस SF6 गैस, ये बना दिया तो क्या होगा, उसका साइज टोटली कम हो गया क्योंकि उसके लिए ज्यादा इंसुलेशन कैपेसिटी है, तो कम स्पेस में ज्यादा इंसुलेशन वो दे देंगे। तो SF6 गैस से हम सबस्टेशन भी बनाता है, उसको बता देंगे गैस इंसुलेटेड स्विचिंग स्टेशन, GIS substations वगैरह। So this is having very high insulating property. The SF6 gas is having very high insulating property. When SF6 gas is used, it will be easily removing the arc. SF6 is used for substations also. Substation इतना बड़ा substation हमको कम साइज पे भी कर सकता है SF6 यूज करके। Okay, now we'll be telling about the working of SF6 सर्क्यूट ब्रेकर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्क्यूट ब्रेकर कैसा काम करता है अभी बताएंगे। ओके, इसमें आप क्या क्या दिख रहा है, इसमें सभी सर्क्यूट ब्रेकर के तरह इसमें भी दो मेंबर्स होगा, एक मूविंग मेंबर, इसी जगह आप देख सकता है मूविंग मेंबर, एंड वन फिक्स्ड मेंबर विल बी देयर इन दिस साइड, फिक्स्ड मेंबर, दिस इज फिक्स्ड मेंबर। ओके, and this area it is known as arcing chamber, arcing chamber. So normally what happens, these will be in close contact, the fixed contact and moving contact will be put together. One person is asking SF6 gas is using whether in outdoor substation or indoor substation. Actually SF6 it will be used in both the condition. If it is used in indoor substation, it will be greatly reducing the total size of installation. सभी इंस्टॉलेशन का साइज कम करेगा। और आउटडोर भी यूज करता है, हमने पहला पिक्चर शो कर दिया, वो आउटडोर सबस्टेशन, आउटडोर सर्क्यूट ब्रेकर का ही है। तो सर्क्यूट ब्रेकर इट कैन बी आउटडोर और इंडोर विथ SF6। One person asked me, okay, so there is a fixed member and moving member. पहले समय में और नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों मीट करके रहेगा। ओके, इट विल बी जॉइनिंग टुगेदर, इट विल बी जॉइनिंग टुगेदर, क्लियर, इट विल बी जॉइनिंग टुगेदर, यू प्लीज सी, इट विल बी जॉइनिंग टुगेदर, एंड व्हाट हैपेंस, दिस विल बी जॉइंड डायरेक्टली, this will be joined directly and the current is flowing without any problem. ये नॉर्मल कंडीशन पे है। अभी प्रोटेक्टिव रिले क्या करेगा, कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो सेंस करेगा, वो प्रॉब्लम बता दिया तो क्या होगा, हमारा मूविंग मेंबर निकलता है, मूविंग मेंबर बाहर आता है। मूविंग मेंबर जब बाहर आता है क्या होगा, उसमें आर्क होगा। तो आर्क कम करने के लिए हम क्या करता है, हम करने के लिए हम आर्क करने के लिए एक पहला वर्क ये है, उसमें एक आर्किंग हॉर्न दे देंगे, arcing horn. Arcing horn, you will be able to see the cross section only is available like this. During the opening, this will be the only cross section for the fixed member, and the current has to flow like this. Okay, the current will be flowing like this. क्या हो गया, उसका क्रॉस सेक्शन इफेक्टिवली कम हो गया। तो आर्किंग हॉर्न क्या करता है, उसका क्रॉस सेक्शन कम करता है। आर्किंग हॉर्न इज गिवन टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्क। आर्क का क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो आर्क निकलने का चांस पहले ही आएगा। सो दिस इज ए मेथड ऑफ हाई रेजिस्टेंस आर्क प्रोटेक्शन, पिछले क्लास में बता दिया था हाई रेजिस्टेंस पर। सो फर्स्ट मेथड इज टू इंक्रीज द आर्क रेजिस्टेंस। सो द पर्पस ऑफ आर्किंग हॉर्न, द पर्पस ऑफ आर्किंग हॉर्न इज टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन। नॉर्मल टाइम में ये पूरा क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, ये पूरा क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, इतना क्रॉस सेक्शन मिल गया था, ये पूरा क्रॉस सेक्शन नॉर्मल कंडीशन में है। ओके, लेकिन
under fault condition, the current will be able to come from this arcing horn only. So what happens effectively, near to the arcing horn, cross section is very less, cross section बहुत कम हो गया, तो क्या होगा, आर्क का रेसिस्टेंस बढ़ेगा, आर्क कम होने का चांस है पहला. ओके, सो दैट इज अबाउट आर्किंग हॉर्न. अभी क्या होता है, अभी जब ये फॉल्ट डिटेक्ट कर दिया, बाहर से SF6 गैस अंदर आता है, यू विल बी सीइंग द फ्लो ऑफ SF6 गैस. नॉर्मली ये आर्किंग चैम्बर में 2.4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में उसका प्रेशर है. नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर कम है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का. नॉर्मल कंडीशन में सल्फर हेक्साफ्लोराइड का प्रेशर कम है, तो नॉर्मल कंडीशन में अभी है. अभी क्या होगा, जब निकलता है, मूविंग कॉन्टैक्ट सेपरेट करता है, उसी समय बाहर से हाई प्रेशर सल्फर हेक्साफ्लोराइड इसी रास्ते पे आता है और इसी जगह से निकलता है. तो इट इज हैविंग हाई प्रेशर सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस, और उसका प्रॉपर्टी ये है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो आर्क से इलेक्ट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करेगा, वो आर्क निकलेगा. सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ sulfur hexafluoride circuit breaker. The first time normal condition, effectively the pressure of SF6 gas will be less, and when fault is there, जब fault हो गया वो डिटेक्ट करता है, मूविंग कॉन्टैक्ट निकलने का तरीका चेक करता है, मूव करेगा. अभी जब ये मूविंग मेंबर मूव करता है, उसी समय हमारा SF6 बाहर से इनलेट आता है, रिजर्वोयर होगा, टैंक होगा, उसी टैंक से बहुत हाई प्रेशर से ये कॉन्टैक्ट के बीच में आता है. इसी समय उसके लिए ऑलमोस्ट 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर है. वो प्रेशर में क्या होगा, उसके लिए ये प्रॉपर्टी है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे. ये प्रेशर से आता है, वो जो आर्क हो गया वो पूरा चीज को बाहर निकलेगा, तो निकले तो आर्क उधर रिमूव करेगा. सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ gas insulated circuit breaker or SF6 circuit breaker. Generally, it is used for very high capacity circuit breakers. Okay, we'll be seeing advantages or working directly. Normally 2.8 kilogram is there. When arc is struck, it will be creating high pressure sulfur hexafluoride from the valve, and it is having high pressure, and it is absorbing free electrons. Free electrons को निकालता है, और ये आर्क सडनली रिमूव होता है, जो अभी बताया वो लेटर में अभी है. और वाल्व क्लोज भी होता है. जब आर्क निकलता है, जो वाल्व ओपन किया अभी वो क्लोज भी होगा. ओके, अभी कुछ एडवांटेजेस देखेंगे हम ये SF गैस का. इट इज हैविंग सुपीरियर आर्क रिमूवल प्रॉपर्टी. तो ऑर्डर पे देखे तो कम कैपेसिटी ऑयल का था, उसके बाद एयर, अभी सल्फर हेक्साफ्लोराइड उससे अच्छा है, एयर से भी अच्छा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड. ओके, इट इज हैविंग मोर कैपेसिटी 2 to 3 times. Air breakers compared to it is having 2 to 3 times the capacity. It can interrupt higher capacity current. ज्यादा करंट को भी इंटरप्ट कर सकता है. तीसरा एडवांटेज है, इट इज गिविंग noiseless operation. Noiseless operation. It will be having very less sound while operation. It is having less noise. कम्युनिकेशन सिग्नल्स के लिए प्रॉब्लम होता है, नॉइस ज्यादा हो गया, तो अभी ये इसमें नहीं होगा. ओके, सो ये टोटली क्लोज्ड है, टोटल स्ट्रक्चर क्लोज्ड है. उसके वजह से क्या होगा, इट इज कीपिंग द टोटल एरिया क्लीन. उसमें बाहर से कोई प्रॉब्लम आने का चांस बहुत कम है, और इसमें फायर का चांस बहुत बहुत कम है. ऑयल सर्क्यूट ब्रेकर में तो ज्यादा फायर का चांस है, लेकिन सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्क्यूट ब्रेकर में फायर का चांस बहुत कम है. Okay, so this is the advantage of this circuit breaker, SF6 circuit breaker. And next advantage is there is no carbon deposit. What is carbon deposit? So जो कोई आर्क हो गया, so there will be some arcing products that is known as carbon deposits. Blackish color items will be there in the faces of the contact. कॉन्टैक्ट का फेसेस में आ गया तो क्या होगा, उसमें रेसिस्टेंस बढ़ेगा. एक बार और बता देंगे, जब ये सर्क्यूट ब्रेकर काम करता है उसमें आर्क होगा, आर्क हो गया तो ब्लैक कलर में कार्बन डिपॉजिट आता है. ये कार्बन डिपॉजिट आ गया तो क्या प्रॉब्लम है,
कार्बन डिपॉजिट आ गया तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, नॉर्मल कंडीशन में उसका वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा कॉन्टैक्ट के बीच में। जब वोल्टेज ज्यादा हो गया उसका हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ा गया तो उसका लाइफ कम होगा। सो सर्क्यूट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट में कार्बन डिपॉजिट जितना कम होना है उतना अच्छा होगा। SF6 में इसका एडवांटेज है कार्बन डिपॉजिट नहीं होगा क्योंकि आर्क जितना तेज में निकालता है। ओके, एंड कंपैरेटिवली लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है इसके लिए। और हेवी भारी इक्विपमेंट है तो भी फाउंडेशन का रिक्वायरमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और कम लाइट फाउंडेशन ही रिक्वायर्ड उसमें। सेकंड एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड टोटली एनक्लोज्ड है, एटमॉस्फेयर से कोई संबंध नहीं है उसके लिए, सो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। लाइक इट विल बी हजार्डस एरिया में भी, जैसा माइन मिट्टी के नीचे आता है माइंस वगैरह, इतना भारी प्रॉब्लम भी हो सकता है उधर, उसी जगह पे हम ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड यूज करता है। Okay, these are the few advantages. We'll be telling few disadvantages like this. It is costly comparing to oil circuit breaker or air circuit breaker. It is heavy costly and it can be used for higher voltages also. The oil circuit breaker and all will be used only for 11 kV capacity, but the sulfur hexafluoride it can be used for 400 kV and above systems also. And the problem is that एक बार यूज कर दिया, एक बार फॉल्ट हो गया, उसके बाद SF6 गैस रिकंडीशन करना है, यानी फिल्टर करना होगा। The SF6 gas has to be filtered or reconditioned. For that, separate equipments will be needed. Okay, so the maintenance part, once it is used much times, it has to be reconditioned. So आप एक टेक्नीशियन डायरेक्टली रिकंडीशन नहीं कर सकता, उसके लिए और कुछ इक्विपमेंट होना चाहिए। ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड बाहर लेना है और उसको रिकंडीशन करना है, उसके लिए ज्यादा खर्चा पड़ेगा। सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्क्यूट ब्रेकर। ओके, नाउ you will be seeing, or you are seeing on the screen, vacuum circuit breaker, a simple picture of vacuum circuit breaker. And here you will be seeing on the end connections also, it is tough or rigid part. This end connection you will be able to see it is having bus bar connection. This area will be connected to the bus bar. Okay, bus bar incoming is there of the upper part or lower part, there will be one incoming and there will be one outgoing. It is directly connected to the bus bar, and for the perfect connection, बहुत ज्यादा करंट लेता है, 3000 एम्पियर लाइक करंट लेता है, कोई कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम नहीं होना है, तो इतना अच्छा बड़ा कनेक्टर्स उसमें दे दिया है। ये सभी सर्क्यूट ब्रेकर में अब देखता है। ओके, दिस इज पिक्चर ऑफ वैक्यूम सर्क्यूट ब्रेकर। नाउ वी विल बी टेलिंग अबाउट द ऑपरेशन ऑफ VCBs, and this is the mostly used item maybe in the medium and high voltage circuit breakers. Vacuum circuit breakers are widely used. Wherever you go for the substations, you are supposed to see this item mainly. Okay, it will be vacuum circuit breakers. It is having arc quenching medium, it is vacuum. Okay, vacuum ka medium, it is perfectly vacuum there, and it is having better arc removal properties. It is totally vacuum. हम क्या क्या मीडियम देख लिया, पहला तो ऑयल था, उसके बाद एयर, उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड, अभी देखता है वैक्यूम। एंड द वैक्यूम इट इज ए हाई प्रॉपर्टी गिविंग मटेरियल ऑफ रिड्यूसिंग द आर्क। ओके, एक वैक्यूम जगह पे आर्क हो गया तो भी वो जल्दी से जल्दी रिकवर होगा, जल्दी से जल्दी रिकवर होगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिकवरी बहुत तेज में है BCB में। वैक्यूम सर्क्यूट ब्रेकर प्रॉपर्टी यही इंपॉर्टेंट, the recovery of dielectric strength, it is very fast. क्या है वो, कोई प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा, एयर आर्क होता है, आर्क हो गया तो किधर है अभी, वैक्यूम में। वैक्यूम में आर्क हो गया तो भी वो जगह पे उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तेज में वापस आता है। तेज में वापस आ गया तो क्या होगा, वो आर्क जल्दी से जल्दी निकलेगा। सो इट इज द एडवांटेज ऑफ वैक्यूम सर्क्यूट ब्रेकर, एंड where it is observed generally on the contact areas of this circuit breaker, these areas like metallic vapors, when arc is there, all this item will be attracted to the surfaces of the contactor. हमारा कॉन्टैक्ट है, वो कॉन्टैक्ट का सरफेस में ही मेटालिक वेपर इलेक्ट्रॉन्स भी अब्सॉर्ब करेगा, कंडेंस करेगा। ओके,
कंडेंस करेगा। ओके, क्लियर है? सो जब कोई प्रॉब्लम हो गया, वैक्यूम वो रुकता है और इलेक्ट्रॉन्स को ये कॉन्टैक्ट ही अब्सॉर्ब करता है। ये एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का पिक्चर है। सभी जगह की तरह इधर भी फिक्स्ड मेंबर भी है और मूवेबल मेंबर भी है। इधर आप देख सकता है फिक्स्ड मेंबर और इधर आप देख सकता है मूवेबल मेंबर। एंड दिस इज टोटली नोन एज आर्क शील्ड। शील्ड तो रुकने का चीज, आर्क इधर रुकेगा, आर्क शील्ड। एंड किधर आर्क होगा? ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट के बीच में आर्क होगा एंड इट इज नोन एज रेंज। आर्क रेंज ये है, जो जिधर आर्क रहेगा वो आर्क एरिया को बताता है आर्किंग रेंज। एंड द अदर एरिया विल बी शील्डेड बाय द आर्क शील्ड। आर्क शील्ड क्यों दिया है? क्योंकि आर्क को इतना ज्यादा हीट होगा, बाकी सभी एरिया को प्रोटेक्ट करना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट द अदर एरियाज फ्रॉम द हीट, so arc shield has been given and this total item will be contained in a vessel. This item totally will be contained in a vessel and that is known as insulating vessel. What is the insulating vessel? And that will be totally in vacuum. This area will be totally in vacuum and the property of vacuum is to increase the dielectric strength as there is a fault in the between the contacts. So this is bellows also, which is helping to move the moving contact. There will be some bellows. ये तेज से मूव करने के लिए मदद करता है, मूवेबल कॉन्टैक्ट को मूव करने का मदद करता है bellows and that will be able to be moved. Okay, so this is happening in this particular item. What is that? This is the vacuum circuit breaker. So that is about construction and operation. We are just going to the advantage also. Advantage of vacuum circuit breaker बता देंगे अभी. It is compact, reliable and longer life. Compact means size birth कम होगा. कैपेसिटी देख लिए तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड से कम होगा इसका साइज और रिलायबल है, विश्वास योग्य है और उसका लॉन्गर लाइफ भी मिलेगा एंड उसमें फायर का प्रॉब्लम नहीं रहेगा. देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ फायर इन VCBs and there is no generation of gas. Yes, sulfur hexafluoride gas is there or air is a gas. In this item there is no gas at all. And that is it can interrupt any fault current. जितना भारी भी करंट है तो भी उसको ये निकल सकता है एंड उसका एडवांटेज है आर्क बर्थ कम समय का होगा, आर्क कम समय का होगा और बर्थ क्वाइट ऑपरेशन, नॉइसलेस होगा ऑपरेशन. इट इज वेरी नॉइसलेस और आर्क का एनर्जी बर्थ कम है. आर्क का एनर्जी, आर्क बर्थ कम समय के होता है तो एनर्जी कम होता है तो उसका हीट भी बर्थ कम होगा. तो effectively we can have lesser size of the circuit breaker. And ये मूविंग कॉन्टैक्ट के लिए इनर्शिया इतना ज्यादा नहीं है. सोचो सल्फर हेक्साफ्लोराइड में बाहर से सल्फर हेक्साफ्लोराइड आना है और उसके लिए कोई कंप्रेसर ऐसा चीज रहेगा. इधर इस ये मूवमेंट के लिए कोई इनर्शिया रहेगा क्योंकि उसमें वैक्यूम ही है तो इनर्शिया नहीं है. तो कंट्रोल मैकेनिज्म, ये मूवमेंट के लिए कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत सिंपल ही चाहिए. अब सोचे तो ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर के लिए और कॉम्प्लेक्स कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए. कंट्रोल मैकेनिज्म ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन इधर इट विल बी लेस कॉम्प्लेक्स. Okay, this is the advantage of vacuum circuit breaker and actually I'll be trying to play one more video. I don't know whether video will be playing further. I'll just start. If it is not working, we'll be stopping this part. Let me check. Okay, so these are the types of circuit breakers circuit breakers of air brake circuit breaker, air blast circuit breaker, vacuum circuit breaker and sulfur hexafluoride circuit breaker. I wanted to just try to play one more video. You can just give me a feedback. If it is not playing, we'll be cutting that. It's a good video. If it is available to you, it will be wonderful. I think just try to play. If you are not able to see the video, please message me. Then I'll be stopping that area. Actually, it is very nice video.
देखता है आप वीडियो अभी? If not video, you are able to see the video, please message me. Okay, fine. You are not able to video means I'll be stopping that. Okay, so this was a class about the circuit breakers, principal operations. So this was brought to you by DGT and hosted by Nimi Chennai, and this is from NST Calicut, Prasad UM. So thank you for watching. If you want to have the PPTs, you can contact me in my Gmail. I'll be sharing the PPTs and the videos also. I'll be able to share that item. You can contact me through email and this particular session ka PPT. You can contact me in this email ID. Okay, thank you all.